Friend, my dear student, good morning, everybody. At the onset, let me thanks the organizers of and creators of this Campus Katta activity, Dr. Sunil Rajputji, and PRO of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Sri Sanjay Ji Sinde, for inviting me to have interaction with all student fraternity. To begin with, let me appreciate Dr. Sunil Rajputji for creating this wonderful platform and providing wonderful opportunities for both speakers as well as students. Because this is going to be a very important platform for everybody, particularly a student fraternity, to listen the variety of people. And this is going to be a wonderful platform for even the person like me as well, because whatever I want, I would like to speak with the student. This is an like a wonderful opportunity as well as wonderful platform for me to communicate with the student, to convey my feelings, to convey my like whatever I wanted to convey to the student. So this is going to be a wonderful platform. So I once again appreciate and congratulate Dr. Sunil Ji Rajput, because although he is a homeopathy doctor, but still he has initiated this particular platform and he has invited many legendary personality. Because I have seen since last almost more than 1 month, I guess, he has invited many people, and he got those people connected to the student. And through this activity, through this series today, I will be communicating with student, you all, on a very special topic today. Friend, since last almost 3 months, we have been every each one of us, we have been locked down to our respective homes. And somehow since last few days, like uh, since first week of this month, we have got some sort of relaxation and we started moving from one place to other. But still, as far as the student fraternity is concerned, the students are still they are not able to move, although school and colleges and universities, they are open, but all non-academics works are being carried out. As far as academics is concerned, teaching learning process is concerned, still somehow because of this the coronavirus pandemic, still we are not able to initiate those activities. And I'm quite sure that you all are doing well during this like a very dangerous and very critical time of coronavirus pandemic. And I'm sure since the things are not moving as per your expectations, आप लोग थोड़ा पैनिक होते होंगे, I know, because as far as the final year students are concerned, those who are in the final year, उनका अभी भी एग्जाम का कोई फाइनल डिसीजन अभी आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा. Although it has already been declared by the state government, but still there are some issues, okay, that we you must have like got that information through various media, print media and electronics media. And as a result of that, you must be little bit panic, right? पैनिक इसीलिए शायद आप हो गए कि एग्जाम अगर, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक तरफ से तो डिक्लेयर किया कि वेदर एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड, फाइनल ईयर एग्जाम आई एम टॉकिंग अबाउट. बाकी बच्चों का तो एग्जाम होने का कोई सवाल ही नहीं, उसका फार्मूला भी आ चुका है. हम लोगों ने बच्चों के मार्क्स भी ऑलरेडी एम के सेट को दे चुके हैं. सो वेरी सून द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बाय द यूनिवर्सिटी. बट दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, वो स्टूडेंट शायद लिटिल बिट दे माइट बी लिटिल बिट प्लानिंग. लेकिन मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि डोंट वरी, these days are going to be vanish very soon. Let me tell you, my friend. एग्जाम, जैसे कि आप अगर एग्जाम से रिलेटेड चिंतित हो गए, तो आई एम श्योर द वेरी सून गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम अप विद सम फार्मूला, एंड देन यू विल गेट रिलीफ. आई एम श्योर योर हेल्थ इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ. मतलब आपको कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मतलब आपके हेल्थ के लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट करेगा, यूनिवर्सिटी करेगा. आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट. एंड एज फार एज दिस पेंडेमिक इज कंसर्न, जैसे कि देखिए, ये दिस इज लॉ ऑफ नेचर कि अगर कोई समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आता है. दिस इज ट्रू दैट वट एवर द प्रॉब्लम वी हैड सिंस लास्ट 2-3 मंथ्स, सॉल्यूशन निकलने में थोड़ा समय जा रहा है. हमें बताया जा रहा है और सही भी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी,
तब तक ये इसका हल नहीं निकलेगा पूरा. एंड देयरफॉर इट पीपल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग कि वी नीड टू स्टार्ट लर्निंग लिविंग विद कोरोना वायरस. मतलब हमें सीखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस के साथ कैसे हमारे डे टू डे लाइफ, डे टू डे रूटीन वर्क हमने करना चाहिए. एंड देन दिस इज माय अर्नेस्ट अपील एंड रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी कि हमें सबको, मतलब वी स्टार्टेड वर्किंग ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने जाना शुरू किया, बट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इनिशिएट कर नहीं पाए. स्टूडेंट को भी अभी अभी अपने आप को मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा कि वी नीड टू स्टार्ट मूविंग, राइट. वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग. लेकिन हमें ये काम करते समय हमें जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, हेल्थ केयर एजेंसी जो है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे. यू मस्ट हैव सीन नाउअडेज आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ मेनी रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन, हमने देखा कि अक्रॉस द महाराष्ट्र we can see like there has been significant increase in coronavirus affected patient. उसका रीजन खाली ये है कि वी आर नॉट डिसिप्लिन. अगर थोड़ा हम डिसिप्लिन के साथ अगर बाहर निकलना शुरू करेंगे, डिसिप्लिन के साथ अगर हम काम करना शुरू करेंगे, तो आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. My friend, today I will be speaking on altogether different topic. Different, I mean like it is a need of the hour, truly speaking. I will be speaking on accepting failures, the way forward for success. Accepting failure, the way forward for success. Now, before I start the proceedings of my talk, let me introduce myself. Myself, Professor M.D. Sirsat. I am working in the Department of Physics since 2003 as a professor, and I am in the teaching profession since almost last 32 years, because I remember I started my teaching career in 1988. And by the grace of Lord Buddha and by the blessings of Dr. Babasaheb Ambedkar, I am fortunate enough to work in various universities. Like I work in affiliated colleges, and then I start working in North Maharashtra University in 1999. I started my career in 1988 as an assistant professor, and then I got PhD in between and shifted to North Maharashtra University, and then I joined this university. In between, I went to the University of Wollongong, Australia, for as a visiting principal fellow. I got postdoc fellowship after my PhD. I went to University of California, Riverside, and then again I got NIH fellowship. I went again there for another 1 year. So like I was there in the US for a couple of years, and then later on I went to Japan as a visiting professor. Went to South Korea, went to Taiwan. So I have visited many universities abroad as well. टुडे आई विल बी शेयरिंग दोज एक्सपीरियंसेस, बिकॉज इट्स नॉट लाइक, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आज जो है ये जो कम्युनिकेशन है, इट्स नॉट गोइंग टू बी कन्वेंशनल स्पीच. मैं वो कन्वेंशनल स्पीच देना ही नहीं चाहता. मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट अपने आप को करना चाहता हूँ. मैंने जो सीखा पिछले 32 साल में, वो दैट आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ यू ऑल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग फेलियर. एंड आगे मैंने कहा कि द वे फॉरवर्ड फॉर द सक्सेस. जैसे कि आपको पता होगा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ माय फ्रेंड कि लाइफ इज लाइक ए रोलर कोस्टर. We are going to have up and downs, we are going to have failures and successes, right? And this is like every day everybody is experiencing this. I mean every day everybody experiencing failures as well as successes. जैसे कि हम जब घर से निकलते, तो ऐसा नहीं, जो काम हम, मान लो आप घर से सवेरे निकले हो, घर से आप, इट कुड बी लाइक यू आर कमिंग टू द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और कमिंग टू द कॉलेजेस, राइट? तो जब आप घर से निकलते, तो ये एक हमारे पास डायरी होती है. डायरी नहीं भी रही तो हमारे हम दिन भर का हमारा एक टास्क पूरा करने का एक मकसद होता है कि चलो मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम घर पर वापस लौटते शाम में, या हॉस्टल में जब वापस लौटेंगे, आपको पता चलेगा कि टुडे आई गॉट सम सक्सेसेस, आई गॉट सम फेलियर्स एज वेल. And same thing is true for everybody, all individuals, not only for student. Like for me also, like after 32 years of my job, still it's not like every day I'm going to be happy, राइट? इसलिए जब भी मैं घर पहुंचता हूँ, मेरे फैमिली मेंबर जब मेरे चेहरे पे खुशी देखते हैं, तो उनको लगता है कि भाई आज सक्सेस का प्रमाण परसेंटेज ज्यादा है, फेलियर रिलेटेड बिट कम. लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं कि दिन भर में मुझे फेलियर नहीं मिलेगा. दिन भर में जो मैं सोचूंगा सब कुछ काम होगा. व्हाट आई मीन टू से इज, फेलियर जो है ये हमारी जिंदगी का एक ऐसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. फेलियर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, जिसको हम वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ दैट.
रादर हमें उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। जैसे कि हम कहते हैं, देखो हम जब स्कूल में थे तो स्कूल में हमने ये कहावत फ्रेज लिखा होगा कि द फेलियर इज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ अवर फर्स्ट स्टेप ऑफ अवर सक्सेस। जब फेलियर को हम फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस जो मानते हैं तो व्हाई वी आर गेटिंग डिमोरलाइज। मुझे आई एम रियली सरप्राइज कि जब हम फेलियर, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जब मैं खुद स्टूडेंट था, अभी भी जब भी कुछ अगर मैं करता हूँ और जो मेरे मैं जो सोचता हूँ अगर वैसा नहीं होता तो क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग टू बी डिमोरलाइज, राइट। तो सवाल ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, तो उसको तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमें लाइक यू शुड बी हैप्पी कि चलो मुझे अभी फेलियर मिला, इसका मतलब आई रीच फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ठीक है, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम जब भी फेलियर होते हम मायूस होते। तो उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कन्वेंशनल एजुकेशन जो है, जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं ना हम, वहां पर हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना, फेलियर को डाइजेस्ट करना, फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करना, ये कभी सिखाया नहीं जाता। हमारे कन्वेंशनल एजुकेशन में कभी सिखाया नहीं जाता, क्योंकि वी टीचर्स लाइक हम, हमारा रोल क्या होता है कि जो करिकुलम में है वही हम पढ़ाना जानते हैं, वो करिकुलम के बाहर हम पढ़ाना ना तो हम चाहते हैं ना तो हम जानते हैं। अब पढ़ाने की कोशिश भी करता है कोई टीचर तो उसको ऑड मैन आउट बोलकर कोई अप्रिशिएट नहीं करता। एंड देन मोर ओवर हमारे पेरेंट्स भी, मैं पेरेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बिल्कुल, मैं खुद भी पेरेंट्स हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जैसे कि घर में अगर कोई हमारा बेटा है बेटी, अगर मान लो उसको अच्छे मार्क्स से पास होता है तो आई वी यूजुअली अप्रिशिएट हिम। लेकिन मान लो कि फेल होता है कभी, परसेंटेज अगर कम मिलता है, तो हम उनको अप्रिशिएट करने के बजाय वी ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई फिटफॉल्स कि भाई तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, सो ही इज गोइंग टू बी डिमोरलाइज फर्दर, राइट। हम अगर को कहेंगे, क्योंकि पहले तो आप जानिए कि जब हम फेलियर होते हैं तो पहले हम दुखी होते हैं, एंड देन घर जाने के बाद अगर पिताजी हम कहे, हमारे पेरेंट्स अगर कहते हैं कि बेटा तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करना चाहिए था, ही इज गोइंग टू बी डिमोरलाइज फर्दर। जो जख्म जो है वो ज्यादा होती है, तो तब क्या जरूरत होता है, वो जख्म को मलम पट्टी करने की जरूरत होती है, मरम्मत करने की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि कन्वेंशनली ये आदत हमें नहीं है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस हम समझते नहीं। हमें हमें मतलब पेरेंट्स का भी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर मैं मेरे बेटे को अगर फेलियर पे अगर सांत्वन करूँ, उसको कहूँ कि भाई ठीक है बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो सकता है शायद वो फिर से फेल हो, ताकि उसको फिर पेरेंट्स को लगता नहीं उसको थोड़ा डांटना चाहिए, नहीं उसको समझाना चाहिए। तब समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब जब आपका बेटा, आपकी बेटी, जब भी आपको लगता है कि उसने एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स लाए हैं, आपके मतलब दायरे में उसको आप फेल्योर मानते हो, तो आप उसको लेट हिम, उसको अपनी स्पेस देनी चाहिए, उसको उनका अपना समय देना चाहिए। रादर आप जाकर उनको बोलो ठीक है डोंट वरी, हम बाद में सोचेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। And जब आप डिस्कस करोगे तो आप बताइए कि फेलियर क्या होता है, आप खुद के एक्सपीरियंस आप उनके साथ बताइए। अनफॉर्चुनेटली ये कन्वेंशनली होता नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग होती नहीं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट लाइक हमारे संसार में हम देखते हैं कि देर आर मेनी इश्यूज नाउअडेज। अभी रिसेंटली हमने देखा एक उभरता हुआ कलाकार, हिंदी सिने सृष्टि का एक उभरता हुआ कलाकार सुशांत, लाइक आपको बताऊं कि बिकॉज आई डोंट वॉच द मूवीज टू मच, लेकिन कभी कभार मैं ट्रेलर देखता हूँ कुछ मूवीज के, कुछ अच्छे अगर मुझे लगे तो। इस लड़के के बारे में मुझे इसलिए हमदर्दी है, रीजन ये है कि ही वॉज फ्रॉम वेरी लाइक कॉमन फैमिली, राइट, वेरी एवरेज लाइक मिडिल क्लास फैमिली। एक बिहार से छोटे से गांव से वो आया था, एंड अपने मेहनत के बलबूते पर ही हैज एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन, क्योंकि बॉलीवुड में एस्टैब्लिश होना इतना आसान नहीं होता, बट ही कुड एस्टैब्लिश इन हिमसेल्फ, राइट। इन स्पाइट ऑफ दैट लाइक द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ कुछ दिन पहले कि ही हैज कमिटेड सुसाइड, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ मुझे वो सुनकर। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि आजकल आप सुनते भी होंगे, प्रिंट मीडिया में आप पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आप सुनते होंगे कि ही वाज बीइंग टॉर्चर्ड, उसको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, जो इस्टेब्लिश लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के। अब सही क्या है हमें पता नहीं है, क्योंकि हम जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में जो आ रहा है उसके बलबूते पे हम अपना कभी कभी अनुमान बना लेते हैं। लेकिन मान लो अगर सही भी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर नहीं होता। इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, इट्स नॉट ओनली इन फिल्म इंडस्ट्री। आप देखिए एकेडमिक्स में भी होता है। आप सोचिए आप स्टूडेंट क्लास हो, आप देखिए अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइन स्टूडेंट है, सवाल करने वाला स्टूडेंट है, ज्यादातर ऐसा स्टूडेंट टीचर्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बीच बीच में रोकता है, बीच बीच में
टीचर की गलतियां, क्योंकि देखिए गलतियां तो कोई भी कर सकता है, मैं उसको आप मानना पड़ेगा कि मैं अगर टीचर हूं, अगर मैं एक मानकर चलूं कि मैं पढ़ाते समय कुछ गलती ना करूं, तो आप झूठ कर रहे हो, कह रहे हो, क्योंकि गलतियां तो सबसे होगी ना। तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते क्लास में कि वो एरोगेंट नहीं होते, मैं उसको कभी भी एरोगेंट नहीं मानता हूँ, मतलब लाइक उनको लगता है कि भाई यहाँ पर सर ने कुछ गलत कहा है, या तो गलत, मैं गलत भी नहीं कहूंगा, लेकिन उनको लगता है कि भाई ये कंसेप्ट जो है इस तरीके से अगर एक्सप्लेन किया होता तो बेटर होता। ऐसे कभी कभी स्टूडेंट करेजियस स्टूडेंट होते हैं और वो खड़े रह के बोलते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा रहा तो ना तो उसके कलीग क्लासमेट उसको अप्रिशिएट करते, उसको बोलते कि बड़ा होशियार है, अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, उस ना तो हमारे उसके क्लासमेट उसको अप्रिशिएट करते, ना तो टीचर अप्रिशिएट करते। मतलब क्या है कि अगर आप प्रोग्रेसिव हो, प्रोएक्टिव हो, तो आप लोग आपको डाइजेस्ट नहीं करते। ये सेम थिंग इज ट्रू, इज नॉट ओनली स्टूडेंट, टीचर फ्रेटर्निटी में भी ऐसा ही होता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए कि जो टीचर बड़ा ईमानदारी से काम करता है, ऑनेस्टली काम करता है, अब आई एम नॉट ब्लेमिंग स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी भी ऐसी है। ब्लेम, आप गुस्सा मत नहीं होना, और ये समझना कि ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, सभी स्टूडेंट नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अगर कोई टीचर उनको ना डांटे, टीचर खाली प्यार से बात करे, और ना पढ़ाते हुए भी मीठी मीठी बात करके, सिलेबस उसने कंप्लीट भी नहीं किया तो चलेगा, लेकिन मीठी बात करने वाला चाहिए। मान लो अगर कोई टीचर थोड़ा सख्त है, क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि टीचर ने माँ जैसा होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ कैसी होती है हमारी, माँ हमें जरूरत पड़े तो हमें फटकारती भी है, और जरूरत पड़े तो प्यार भी करती है। टीचर भी वैसे होना चाहिए, टीचर इज लाइक मदर, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर ने बच्चों को डांटना भी चाहिए और प्यार से उनके पीठ पर हाथ भी घुमाना चाहिए। ये दोनों काम अगर टीचर अगर करे तो मुझे लगता है वो सही टीचर होगा। लेकिन आजकल अगर टीचर डांटने वाला टीचर रहा, सब कुछ पढ़ाने वाला रहा, सख्त सवाल करने वाला रहा, तो ऐसे भी टीचर लोगों को अच्छा नहीं लगता, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज जो ऑडियंस मेरे सामने है, सभी अच्छे स्टूडेंट है, आप बड़े ऑनेस्ट है, बड़े जेन्युइन है, बड़े कमिटेड हो आप सभी लोग, एंड आप वो कैटेगरी में हो जो कभी भी अच्छे टीचर को अप्रिशिएट करने वाले में से हो। तो मैं ये कह रहा था कि टीचिंग फ्रेटर्निटी में भी ऐसा ही है। इंस्टीट्यूशन में अगर कोई कोई अगर बंदा काम करने वाला है, प्रोएक्टिव है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर उसका नहीं है तो ही इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर एनीवेयर। लेकिन आप देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जिनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिनके पास मसल पावर है, दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड, दे आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर डिफरेंट पोजीशंस एज वेल। ये सब मेरा ही कहने का मतलब, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, मेरा ही कहने का मतलब है कि इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, इट इज नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री। जो इस्टेब्लिश लोग होते हैं, नए लोगों को, जो प्रोएक्टिव होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, उनके लिए वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करते। सुशांत के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सुशांत एक ऐसा लड़का था, ऐसा हीरो, मतलब फिल्म एक्टर था, कि कोर्ट ने उसको मना किया था कि ही वॉज वेरी स्मार्ट, यू नो, स्मार्ट आई मीन इट्स नॉट ओनली फॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका अपीयरेंस में बड़ा स्मार्ट था। काम में तो था ही, लेकिन अपीयरेंस में भी उसको, आपको पता, आपको शायद पता होगा, क्योंकि आप बच्चे हो, यंग बच्चों को सब पता रहता है, लेकिन मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, अगर पता नहीं हो तो आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को कोर्ट ने प्रोहिबिट किया था कि भाई आप अगर किसी पार्टी में जाओगे तो आप ब्लैक कपड़े पहन के नहीं जाओगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हॉट लगते हो। किसने केस उसके खिलाफ की थी कि भाई ये ज्यादा हॉट लगता है, इसीलिए इसने वाइट ब्लैक सूट पहन के नहीं जाना चाहिए। तो कोर्ट ने उसके खिलाफ, मतलब उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि भाई आप जब भी कहीं जाओगे, मतलब पर्टिकुलर पार्टीज में, आप ब्लैक कपड़े नहीं पहनोगे। आप मानिए कि इसका मतलब ही वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, राइट, स्मार्ट अपने दिखने में भी था एंड स्मार्ट अपने काम में भी था। तो ऐसे ऐसे लोग जब चले जाते हैं ना, बड़ा दुख होता है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो उसके साथ जो हुआ, जो मैंने कह रहा था कि ये सब तरफ है, पॉलिटिक्स में भी है, पॉलिटिशियन में भी है, नेपोटिज्म की जो बात आजकल हो रही है, सब तरफ है। नेपोटिज्म इज नॉट ओनली नेपोटिज्म, जो इस्टेब्लिश लोग होते हैं, एक तो पहले तो नेपोटिज्म कुछ कुछ हद तक वो भी है, लेकिन साथ साथ जो इस्टेब्लिश लोग होते हैं, नए जो जो हार्डवर्किंग लोग होते हैं, जिनके कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता, और जो अकेले होते हैं, उनको टार्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखो, अगर इसी माहौल में आप अगर जी कर बताते हो तो उसी को तो बाजीगर कहते हैं ना। तो मुझे, मेरा ये कहना है आपको कि आपको इससे, ये अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसे मतलब परिस्थितियों से अगर गुजर रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उससे मायूस नहीं होना चाहिए, आपको उससे सीख लेनी चाहिए। तो माय फ्रेंड, मैं जो है आपको स्टोरी के माध्यम से मैं जरा आपके साथ बात करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा
अगर बुकिश अगर मैं बताऊं तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ा पहले स्टोरी शुरू करता हूँ। बहुत सारी स्टोरीज मैं आपको बताने वाला, सुनवाने वाला हूँ। तो पहली स्टोरी है, एक इंसान था, ही वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, राइट, एंड देन वाइल वॉकिंग ही कुड सी देयर इज लाइक वेरी एक्सोटिक बर्ड। बड़ा सुंदर सा एक एक पंछी उनको मिला, दिखाई दिया, और उनको लगा कि यार बड़ा अच्छा प्यारा सा बर्ड है, इसको मैं पकड़ना चाहता हूँ और मेरे घर में उसको पेट रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी बारकाई से उसके पीछे से गए एंड उसको पकड़ा। पकड़ के ही वॉज वेरी हैप्पी, दैट पर्सन हु कॉट दैट बर्ड वॉज वेरी हैप्पी। उनको लगा कि चलो मैं इसके पिंजरे में बंद करके, इज गोइंग टू माई पेट नाउ, मेरे घर में एक अच्छा अच्छा पंछी होगा। तो वो लेकर गया, सॉरी, तो पकड़ा। तो पकड़ते ही टू हिज अतर सरप्राइज आप देखोगे कि मतलब उसने देखा कि दैट बर्ड स्टार्टेड टॉकिंग। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि यार ये पंछी है, कैसा कैसी बात कर रहा है। और व्हाट ही स्टार्टेड स्पीकिंग, ही स्टार्टेड स्पीकिंग कि भाई काइंडली रिलीज मी, काइंडली रिलीज मी। तो उनको वो मतलब रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। एंड ही इन रिटर्न ही सेड, अगर आप मुझे छोड़ेंगे तो मैं आपको 3 अच्छी ऐसी एडवाइस दूंगा कि उससे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब वट एवर एडवाइस आई एम गोइंग टू गिव यू इन रिटर्न, अगर आप मुझे छोड़ेंगे तो आपकी दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म योर एंटायर लाइफ। तो ये इंसान को लगा कि चलो अच्छा है, लेट अस सी, ये छोटे से पंछी को लेकर मैं करूँ क्या, अगर ये एडवाइस मुझे कुछ देगा और उससे अगर मेरी लाइफ ट्रांसफर होगी तो मेरे लिए अच्छा होगा। देन ही हैज डिसाइडेड टू रिलीज दैट बर्ड। एंड उसने बताया, फिर रिलीज होने के पहले पंछी ने बताया कि देखो, जब आप मुझे रिलीज करोगे तो उड़ते समय मैं आपको पहला एडवाइस दूंगा। एंड देन आप जो सामने का जो ट्री देख रहे हो, उसके जो वो ब्रांच देख रहे हो नीचे वाली, वो ब्रांच में जब मैं पहुंचूंगा, वहां बैठूंगा, तब मैं सेकंड एडवाइस दूंगा। एंड देन उसके बाद में मैं ऊपर जाऊंगा और वो ट्रीज के जो चोटी पे जब मैं जाकर बैठूंगा, तब मैं मेरा तीसरा एडवाइस दूंगा। तो इन्हें कहा ओके ठीक है। सो ही हैज रिलीज, एंड व्हेन द बर्ड स्टार्टेड फ्लाइंग, ही हैज गिवन हिम द वेरी फर्स्ट एडवाइस। व्हाट वाज दैट एडवाइस? That advice was, do not torture, torment, and burden yourself with excessive regret for your past mistake. मतलब आपके अगर लाइफ में अगर पहले कुछ आपने गलतियां की होंगी तो आप अपने आप को टॉर्चर, एक्सेसिव आप रिग्रेट मत करिए। एक्सेसिव रिग्रेट करके अपने आप को टॉर्चर मत करिए, अपने आप को बर्डन मत दीजिए, अपने आप को टॉर्मेंट मत करिए आप। राइट, दिस वाज द फर्स्ट एडवाइस। एंड देन ही वेंट एंड देन सैट डाउन ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, जो उन्होंने बताया था। एंड देन वहां जाकर उन्होंने सेकंड एडवाइस दिया। उन्होंने कहा कि डू नॉट बिलीव एनीथिंग दैट गोज अगेंस्ट योर कॉमन सेंस अनलेस यू हैव फर्स्ट हैंड प्रूफ। मतलब आप किसी भी चीज को, आपका कॉमन सेंस अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मान लो कि कोई कुछ कर रहा है लेकिन दैट इज गोइंग अगेंस्ट योर कॉमन सेंस, आपको लगता है कि यार ऐसा हो नहीं सकता, अनलेस यू हैव सम फर्स्ट हैंड प्रूफ, तो आप उसके ऊपर भरोसा मत करो। तो he was very happy, he got the two advices, and later on once that bird finished that second advice, he went to the highest, जैसे उन्होंने बताया कि बिल्कुल चोटी पे जाकर वो चोटी पे जाकर बैठ गया। और वहां से then he started looking at this man and started laughing, लाइक वहां जाकर वो ये जो इंसान था जिसने उसको छोड़ा था, उसके तरफ देख के हंसना शुरू किया और कहने लगा कि यू आर फुल, अरे तुम तो बेवकूफ हो, तुमको पता ही नहीं है जो मैं, आपने मुझे छोड़कर बड़ी बड़ी गलती की, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मेरे पेट में 2 बड़े बड़े हीरे थे, ह्यूज वेल्स, बड़े बड़े हीरे थे, और आप बेवकूफ हो, आपने मुझे छोड़ दिया। छोड़ने के बजाय आप अगर आपके पास ही मुझे रखते हो और मुझे मारते हो, तो मेरे पेट से आपको बड़े 2 हीरे मिलते थे, एंड देन यू कुड हैव ओनर ऑफ दैट बिग बिग ज्वेल्स, एंड एज a result of that you could have become like richest person in the world, right? तो आपने बेवकूफी की। एंड देन लाइक वो सुनकर ये बड़ा दुखी हुआ ये इंसान, उसको लगा कि यार मैं कितना बेवकूफ हूँ, कितना मूर्ख हूँ, कितना स्टूपिड हूँ। ये तो मुझे क्यों नहीं समझ में आया, मेरे तो हाथ में था ये पंछी, मुझे क्यों नहीं समझ में आया। एंड स्टार्टेड ब्लेमिंग हिमसेल्फ, स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग अबाउट हिमसेल्फ, ओवरबर्डनिंग हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ ड्यू टू हिज वट एवर मिस्टेक ही हैज कमिटेड। कौन सी मिस्टेक किया था, उसको लगा कि भाई मैंने ये पंछी को छोड़ा, ये मेरी मिस्टेक थी। ही स्टार्टेड ब्लेमिंग, रिग्रेटिंग हिज अबाउट हिज दैट एक्टिविटी। एंड देन अब बाद में उसने वो बर्ड को कहा कि भाई यार ठीक है, अभी मेरे से गलती हुई, जो हुआ सो हुआ, कम से कम जो तुम्हारा तीसरा एडवाइस था वो तो बताओ, कम से कम क्या बताने वाले थे आप। कम देखता हूँ मैं वो एडवाइस से मुझे कुछ तो मुझे इसका जो जो लॉस मैंने किया, जो लॉस कोई कॉम्पेंसेट होता है क्या, लेट मी सी। एंड देन बर्ड स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग, अरे बेवकूफ इंसान, मैं तो तुमको टेस्ट कर रहा था, आपने तो अभी अभी मैंने जो तुमको 2 एडवाइस दिया, दोनों के दोनों एडवाइस को आपने डिसरिगार्ड किया, आपको समझ में नहीं आया। आपको मैंने पहले बताया था कि देखो, कभी भी, पहले मेरा एडवाइस क्या था, कभी भी आप
अपने आप को, आपकी जो गलती है, आपकी गलती को आप अपने आप को कभी रिग्रेट मत करो, टॉर्चर मत करो। आपने तो अपनी गलती मान लिया, जो मुझे आपने छोड़ा उसको आप गलती मान लिया और रिग्रेट करना शुरू किया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए, आपका कॉमन सेंस आपको समझना चाहिए था कि मैं छोटा सा पंछी हूँ, छोटा सा बर्ड हूँ, मेरे बेड में ये बड़े बड़े हीरे कैसे हो सकते। ये तो आपके कॉमन सेंस की बात थी जो आपने माननी नहीं थी, लेकिन आपने मान लिया। इसका मतलब ये है कि जो मैंने दो मेरे एडवाइस दिए वो तो आपने माने नहीं। अब दूसरा एडवाइस देके करूं क्या, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने कमिट किया था, तो चलो मैं आपको तीसरा एडवाइस देता हूं। एंड देन तीसरा एडवाइस उन्होंने क्या किया, तीसरा एडवाइस ये दिया कि जो आपके पास है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते, तब तक आप क्यों जो आपके पास नहीं है उसकी डिमांड क्यों करते हो। राइट, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास है उसको पहले प्रॉपरली यूटिलाइज करो, एंड उसके बाद यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हम बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास है उसके उसके ऊपर तो हम, मतलब उसकी तरफ तो देखते नहीं, जो नहीं है उसके पीछे हम भागते रहते, उसका जो है उसके ऊपर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते नहीं, जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते। तो वो एडवाइस सुनकर ये जो इंसान था, ये इसको लगा कि यार दीज थ्री एडवाइस आर गोइंग टू बी रियली यूजफुल फॉर मी। यू कैन सी व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी माय फ्रेंड। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कभी भी आपके लाइफ में, जैसे मैंने पहले बताया कि देखिए देखिए हम काम करते समय हमसे गलतियां तो होगी, डेफिनेटली गलतियां होगी, क्योंकि देखिए आप अगर इंटेंशनली गलती करते हो तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट अननोइंगली आपसे गलती होगी। तो आप अगर रिग्रेट करते रहेंगे, आपको अपने आप को ओवरबर्डन करते रहेंगे, टॉर्चर करते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलती को मतलब नजरअंदाज करो। नो, रिग्रेट तो आपको करना पड़ेगा, बट नॉट एक्सेसिव रिग्रेट। राइट, क्योंकि आप अगर गलती को रिग्रेट नहीं करोगे, आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, तो क्या होगा, आप फिर से गलती दोहराओगे। राइट, तो मैं चाहता हूं कि आप रिग्रेट करो, बट डोंट रिग्रेट एक्सेसिवली, ताकि आपका मॉरल डाउन हो। आपको देखना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ये गलती हुई मेरे से, बट मुझे पता है कि गलती क्यों हुई। तो दिस कुड बी लाइक वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। आप उसको क्या करिए, आप उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर आप उसको ट्रीट करिए। आप अगर ऐसा करना शुरू करेंगे तो आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू बी, ऑफकोर्स फेलियर तो हमारे लाइफ में मरते दम तक रहेंगे, मैं बताना चाहता हूं आपको, लेकिन फेलियर की संख्या हम कम कर पाएंगे। जो नंबर है ना फेलियर का, वो हम कम कर पाएंगे। एंड सेकंड जो बताया था उन्होंने कि जो किसी ने अगर कुछ कहता है तो डोंट बिलीव स्ट्रेट वे। आपको अगर लगता है कुछ कोई बता रहा है आपको, आपके कॉमन सेंस अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, अनलेस आपके पास प्रूफ उसका हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता लेकिन प्रूफ है, तो ही आप उसको बिलीव करो। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एडवाइस जो बंची ने दिया था कि जो आपके पास है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करो। अगर प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो क्या होगा, आई एम श्योर कि आपके मतलब लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, आपके पास जो नहीं है उसके पीछे आप भाग रहे हो। तो ये तीन एडवाइस माय फ्रेंड हम सब के लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, ये सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते। अगर सही मायनों में हमें फेलियर से अगर बचना है, या फेलियर को अगर हमें डाइजेस्ट करना है, तो ये तीन एडवाइस सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि नॉलेज एंड मेकअप। देखो, नॉलेज एंड मेकअप, मेकअप क्या है, मेकअप का मतलब ये कि चेहरे पे जो लगाते वो, राइट। नॉलेज एंड मेकअप दोनों सिमिलर काइंड ऑफ इनका इम्पैक्ट होता है। जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करते, नॉलेज और मेकअप को जब तक अप्लाई नहीं करते, उसका एग्जिस्टेंस हमें पता नहीं चलता। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, मेकअप चेंज द वे यू लुक, राइट। मेकअप विल हेल्प to change you to where you look, whereas the knowledge will help you to change the way you live, right? This is the difference। मतलब नॉलेज हमें जीना सिखाता है, राइट। मेकअप हमें एक एक्सटीरियर एक्सटर्नल एक ब्यूटी देगा, लेकिन नॉलेज जो है आपकी इंटरनल ब्यूटी नॉलेज से बढ़ेगी। तो ये तीन एग्जाम्पल, तीन एडवाइसेस मुझे ऐसा लगा कि ये सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर फेलियर को हमें डाइजेस्ट करना है, एंड फेलियर की संख्या अगर हमें कम कम करनी है। और फेलियर जो कहावत जो है कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, and if you really want that failure to be considered as the first step of success, then these three advices are going to be very important। आपको मैं दूसरी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी थी, जिसके कुछ मेंबर्स थे। उनके एक मेंबर्स की एक बेटी थी कि सी यूज्ड टू बी फर्स्ट इन एवरी ग्रेड। पिछले मतलब एवरी ईयर जब भी उसकी एग्जाम होती थी, एवरी ईयर सी यूज्ड टू बी फर्स्ट इन द क्लास, राइट।
ऐसा होते रहा, सेकंड में भी वैसे हुआ, थर्ड में भी ऐसा ही हुआ, ऐसा करते करते वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में आई। फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी ही स्टूड फर्स्ट। तो एंड देन व्हाट शी यूज्ड टू डू, एवरी ईयर आफ्टर एग्जामिनेशन, जब भी एग्जाम होती थी, जब भी रिजल्ट लगता था, तो वो ग्रेड सीट लेकर अपने जो स्पिरिचुअल गुरु जो है उनके पास हो जाती थी, उनको बड़े खुशी खुशी अपना ग्रेड कार्ड बताती थी, एंड ही यूज्ड टू टेक ब्लेसिंग्स एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम हर स्पिरिचुअल गुरु, एवरी ईयर वो करती थी। तो जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी, तब भी वो फर्स्ट फर्स्ट क्लास आई, फर्स्ट आई मीन फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आई। एंड देन उसको लगा, वो बेटी को लगा कि चलो इस साल भी मैं मेरे गुरु के पास जाती हूँ, उनका अप्रिसिएशन और ब्लेसिंग लेती हूँ। सी रन अवे, वेंट टू द गुरु एंड शोड हर ग्रेड सीट, राइट। जब वो गुरु वो जो बेटी का ग्रेड सीट देख रहे थे, मार्क्स बड़ा मेटिकुलसली when he was going through, so that daughter, that girl was eagerly waiting for appreciations, like उसको लगा कि भाई ठीक, अभी तो मुझे बढ़िया अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि अब तो ये फिफ्थ स्टैंडर्ड है, बेटर क्लास है। बट टू हर अत्तर सरप्राइज, द गुरु ने उनको सवाल करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई आप, उसने, व्हाई डिड यू स्टैंड फर्स्ट इन दिस क्लास इन दिस ईयर टू। मतलब सी बात सरप्राइज कि भाई मेरे गुरु हर साल मुझे अप्रिशिएट किया करते थे, ब्लेसिंग्स दिया करते थे, अभी इस साल मुझे सवाल क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे पूछ रहे हैं कि मैं पहली क्यों आई हूँ। तो वो जो गुरु थे, क्योंकि स्पिरिचुअल गुरु थे, उन्होंने उनका फेशियल एक्सप्रेशन से पता चला कि ये बेटी जरा कंफ्यूज है, थोड़ा डरी हुई है मैंने सवाल करने से। तो उन्होंने ही स्टार्टेड स्पीकिंग और कहने लगे कि देखो बेटा, आई नो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी सिंसियर एंड वेरी कमिटेड स्टूडेंट, और आपको जो ग्रेड मिला उसी का ये नतीजा है, दैट आई नो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीइंग द फर्स्ट इन द क्लास इज नॉट ओनली द पैरामीटर फॉर सक्सेस ऑफ द सक्सेस इन द लाइफ, राइट। मतलब क्लास में पहले ही आना, मतलब क्लास में फर्स्ट होना इज नॉट ओनली द पैरामीटर फॉर सक्सेस, राइट। क्योंकि आप अगर ये मान के चलोगे कि फर्स्ट आ गई, नाउ माय जॉब इज ओवर, तो आप कभी भी आगे चल के कहीं ना कहीं तो आप मतलब यू विल स्टक अप। तो इसलिए मैं अभी, क्योंकि आप छोटी थी इसलिए मैंने बताया नहीं, क्योंकि आप थोड़ी ग्रोन अप हो गई हो, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट से भी आप फर्स्ट आई अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी सिंसियरिटी, आपके आपके हार्ड वर्किंग एबिलिटीज, आप कमिटेड कितना हो, और आपकी सब्जेक्चुअल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट की वो कैसी है। अगर मान लो आप फर्स्ट आई हो और इसमें कुछ नहीं, आप सिंसियर नहीं, हार्डवर्क नहीं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो आपका फर्स्ट आना कोई मतलब नहीं। बट आई नो बिकॉज यू आर वेरी सिंसियर, हार्डवर्किंग पर्सन, हार्डवर्किंग गर्ल, राइट, कमिटेड गर्ल, राइट, एंड इसलिए आपको जो भी रिजल्ट मिला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन लेट मी टेल यू माय डॉटर, माय लेट मी टेल यू, वो जो गर्ल थी, वो जो लड़की थी, जो बेटी थी, उनको बताना शुरू किया उन्होंने कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर फेल भी होती, आप अगर या तो आप फर्स्ट के बजाय सेकंड आती, थर्ड आती, फोर्थ आती, या इवन फेल भी होती, तो भी मैं वही अप्रिसिएशन आपका करता, वही ब्लेसिंग मैं आपको देता, क्योंकि मुझे पता है कि यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट, यू आर वेरी कमिटेड एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन मैं आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, वो ये कि कभी कभी हम हार्डवर्किंग होने के बावजूद भी, कमिटेड होने के बावजूद भी, जेन्युइन होने के बावजूद भी, कभी कभी जो सिचुएशन जो होती है ना, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, एज रिजल्ट ऑफ दैट, रिजल्ट जो है वो हम जो एक्सपेक्ट करते वो नहीं आता। देखिए, फेलियर इज अ रिलेटिव टर्मिनोलॉजी, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, इट्स नॉट एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजी। कैसा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है, he is expecting to get only passing percentage in the subject, like अगर 40 भी मिले तो he is happy, out of 100 40 भी मिले तो he is happy। अगर मान लो गलती से, या like by the grace of God, अगर उसको 60 मिले तो he will be very happy, is going to be success for him, right। तो वो तो बड़ा खुश हो जाएगा, ही इज गोइंग टू सेलिब्रेट। लेकिन दूसरा एक वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, एवरी ईयर ही इज गेटिंग 90%, एंड अगर उस सब्जेक्ट में उस साल अगर इफ ही एंड अप विद 60%, इट इज गोइंग टू बी फेलियर फॉर हिम, राइट। क्योंकि हर साल वो 90% लेता है, हर साल 90% मार्क्स से वो पास होता है, एंड दिस ईयर ही गॉट ओनली 60%। सो परसेंटेज दोनों को एक जैसे मिला, लेकिन एक स्टूडेंट जो दुखी है, राइट, उसको वो फेल्योर मानता है 60% को, और दूसरा जो है वो सुखी है, उसको वो उसका अपना सक्सेस मानता है। सो दैट इज व्हाई माय फ्रेंड, दिस फेलियर टर्मिनोलॉजी इज एब्सोल्युटली रिलेटिव टर्मिनोलॉजी, ये एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकती, एंड इसीलिए ये इसको वैरी करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जो उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप हार्डवर्किंग हो,
बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो स्टूडेंट सुन रहे हो, आपने आपकी लाइफ में भी ये मौके आए होंगे, ये परिस्थिति आई होंगी कि यू मस्ट हैव वर्क वेरी सिग्निफिकेंटली, रिगरसली, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, किस सब्जेक्ट में, नॉट ऑल द सब्जेक्ट, एक कोई सब्जेक्ट है कि जो आपका बड़ा फेवरेट था, अच्छा था, उसके बावजूद आपको कम मार्क्स मिले, राइट? तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैंने एफर्ट्स लिए थे क्या? यस. I was, am I committed? Yes. Was I committed? Yes, I was committed. तो अगर committed थे, हार्ड वर्किंग थे, आपने मेहनत भी की, सब कुछ किया, बट सम सिचुएशन ऐसी थी कि जो आपके हाथ में नहीं थे, आपको जो भी मार्क्स कम मिले, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू. तो ये एनालिसिस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर हम नहीं समझेंगे तो क्या होगा ना, हम डिमोरलाइज होंगे. एंड फिर से मैं बताता हूँ जो मैंने पहले बताया कि लाइफ इज लाइक, लाइफ, माय फ्रेंड, लाइफ इज लाइक ए रोलर कोस्टर, राइट? जैसे मैंने पहले बताया कि यू आर बाउंड टू हैव अप एंड डाउन्स, यू आर बाउंड टू हैव फेलियर्स एंड सक्सेसेस, राइट? एंड मैंने पहले भी बताया कि एवरी डे एवरीबडी इज गोइंग टू फेस दिस प्रॉब्लम. मतलब हर दिन हम फेलियर्स होते हैं, फेलियर हमको मिलते हैं, हर दिन हमें बहुत सारे सक्सेस भी मिलते हैं. लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास साइंटिफिक मेथड नहीं है, तो आज मैं आपको एक 4 साइंटिफिक तरीके बताऊंगा, राइट? 4, आई एम गोइंग टू टेल यू 4 साइंटिफिक मेथड्स टू एड्रेस दिस इशू. क्योंकि देखिए, मैंने जैसे बताया, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डाइजेस्ट फेलियर, राइट? एंड मोर ओवर हाउ, बिकॉज जैसे हमने कहा कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, राइट? जब हम कहते हैं फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस फेलियर को मैं सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करूं, इस फेलियर को कैसे, मुझे व्हाट कुड बी माय लर्निंग एक्सपीरियंस आउट ऑफ दिस, राइट? उसके लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ साइंटिफिक मेथड्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे. दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. द फर्स्ट इज, the first scientific method is do your SWOT analysis. This is first scientific method. What is SWOT? SWOC. S stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and C stands for challenges. तो अपने आप को, जैसे कि आपको पता होगा माय फ्रेंड, आप कॉलेज के अगर होंगे सभी, हो सकता है 11वीं 12वीं में जो 11 12 में स्टूडेंट अगर सुन रहे होंगे तो उसको शायद ये पता नहीं होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ. लेकिन जो अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर जो, उनको पता होगा कि आफ्टर एवरी 5 years NAC is going to visit our universities, colleges. अब NAC का accreditation, assessment and accreditation करते, and NAC has made it mandatory for all the institution to do SWOT analysis, right? तो 5 साल में एक बार करना ही है. रादर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो SWOT एनालिसिस नॉट ओनली फॉर इंस्टीट्यूशन, द SWOT एनालिसिस नीड टू बी डन फॉर एवरी इंडिविजुअल. ये खाली स्टूडेंट के लिए नहीं, आज क्योंकि स्टूडेंट ऑडियंस है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन ये सबके लिए जरूरत है. जैसे कि मैं टीचर हूँ, 32 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, लेकिन मुझे हर दिन मुझे मेरा SWOT एनालिसिस करना होता है. हर दिन वुड बी, इफ आस्किंग यू टू डू डे बाय डे, इट वुड बी टू मच, बट लेकिन आपको कम से कम महीने में एक बार अपना खुद का SWOT एनालिसिस करना होता. आप अगर महीने में नहीं तो कम से कम साल में एक बार तो करिए. तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपको फेलियर को डाइजेस्ट करना है, फेलियर, जैसे मैंने बताया कि फेलियर की अगर संख्या आपकी अगर कम करनी है, सक्सेस रेट अगर बढ़ाना है, तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड होगा आपका अपने आप का SWOT एनालिसिस करिए. आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके वीकनेसेस क्या है. देखिए, ये क्यों करना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा ना, जैसे कि मान लो आपको स्ट्रेंथ क्या है पता नहीं है, आप जैसे कि एमएससी कर रहे हो, 2 साल का आपका कोर्स है, और आपके स्ट्रेंथ आपको पता नहीं है. जैसे कि एक स्ट्रेंथ है आपका कि यू कैन स्पीक वेरी गुड, राइट, इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, व्हाटएवर, कोई तो है एक लैंग्वेज जिसके ऊपर आपका पूरा कमांड है, स्टेज करेज है, आप वेरी करेजियस हो, ये आपको पता है. लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आपने उसको जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं. अगर पहचानोगे नहीं तो आप अपने आप को प्लेटफॉर्म कैसा दोगे, आपके पास सक्सेस स्टोरीज कैसे क्रिएट होगी. देखिए, कॉन्फिडेंस मॉडल बढ़ाने के लिए हमारे पास सक्सेस स्टोरी होनी जरूरी होती है, और सक्सेस स्टोरी हमारी खुद तैयार करनी पड़ती है, हमें कोई दूसरा हेल्प नहीं करेगा. यू नीड टू क्रिएट योर ओन सक्सेस स्टोरी. इसीलिए वो सक्सेस स्टोरी अगर क्रिएट करनी है तो सबसे पहले देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ कुड बी इन टर्म्स ऑफ लाइक ओवरऑल पर्सनैलिटी, सॉफ्ट स्किल, राइट? आप अच्छा बोल सकते हो, अच्छा लिख सकते हो. कभी कभी कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका हैंडराइटिंग बड़ा सुंदर होता है, तो आप उस टाइप की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए ड्यूरिंग योर एमएससी, ड्यूरिंग योर बीएससी, ताकि आपके पास कुछ सक्सेस हो ऑन पेपर, सर्टिफिकेशन हो, अप्रिसिएशन हो, एक मेडल हो, ताकि दैट इज गोइंग टू बी फॉर एवर आपके दिमाग में रहेगा कि यस, मैं आई हैव सम सक्सेस स्टोरी विद मी, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड स्ट्रेंथ विद यू विल नॉट बी एक्सप्लोरिंग योर स्ट्रेंथ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास सक्सेस स्टोरी नहीं होगी. दैट इज वन थिंग.
वीकनेसेस भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम क्या करते हैं, वीकनेसेस को छुपाने की कोशिश करते हैं। छुपाना गलत बात नहीं है, छुपाना भी इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं जनरली मेरे स्टूडेंट को, मैं तो ये तो जनरली मैं जब भी मेरे क्लास पे जाता हूँ तो पहले 4-5 क्लास में इसी के ऊपर समय बिताता हूँ। बच्चों के तो मैं तो काफी डिटेल बताता हूँ, आज उतना डिटेल नहीं बताऊंगा मैं। तो मैं बताता हूँ कि भाई आप यू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, राइट? यू आई मीन विदाउट एनी हेजिटेशन। ये जो डायरी होगी जिसमें शॉक एनालिसिस करोगे, ये डायरी इट वुड बी योर पर्सनल डायरी। आप किसी को नहीं बताओ ये। अगर मान लो आपने अगर डिसाइड किया कि डायरी मुझे किसी को बतानी है, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या आपके पेरेंट्स को या किसी को, तो आप झूठ लिखना शुरू करेंगे। आप यू विल नॉट बी ऑनेस्ट पर्सन। सो ये डायरी आपकी पर्सनल डायरी होनी चाहिए। आप इसको किसी को किसके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी क्या वीकनेसेस है। वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपके दो प्लानिंग होनी चाहिए। एक होगा शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू हाइड योर वीकनेसेस। हाइड क्यों करना है, मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। एक वंडरफुल एग्जांपल बोलता हूँ युवराज सिंह और सुरेश रैना का। आपको पता होगा कि सुरेश रैना और युवराज सिंह बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड प्लेयर, बट somehow they were not consistent, right? आपको पता होगा कि एक जमाना था युवराज सिंह ने T20 में 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू टीम में नहीं रहा, राइट? सुरेश रैना भी है, उसके पास भी कुछ सक्सेस है, बट बट दैट हिज सक्सेस वाज नॉट कंसिस्टेंट, राइट? कंसिस्टेंसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी आने के लिए भी शॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो इन दोनों का एक बिग पॉइंट क्या था, ये शॉर्ट पिच बॉल पे जल्दी आउट होते थे। सभी अच्छे बॉलर ने पहचान लिया था कि भाई इन पे अगर इनको अगर आउट करना है तो शॉर्ट पिच बॉल डालो। ये लोग जब भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, पर्टिकुलरली पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में, तो दे यूज्ड टू स्ट्रगल लाइक एनीथिंग। इंडिया में वो मतलब दे यूज्ड टू बी लाइक किंग, लेकिन जब बाहर जाते थे तो दे यूज्ड टू स्ट्रगल, नॉट इन एवरी मैच बट इन मोस्ट ऑफ द मैचेस, राइट? तो क्या हुआ ना, उसका रीजन क्या हुआ, मेन रीजन ये हुआ कि उन्होंने अपनी वीकनेस जो है बाद में आगे चलकर कुछ सॉल्यूशंस उन्हें दिखाई दिए थे, बाद में कुछ इंप्रूव उन्होंने किया था, बट टू बिगिन विद दे गॉट एक्सपोज। वो हाइड अपनी वीकनेस को हाइड नहीं कर पाए, लोगों ने पहचान लिया कि इनकी वीकनेस क्या है। तो कभी भी ध्यान रखना कि आपकी वीकनेस अगर कोई एक बार जान लिया तो वो ही इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट दैट, राइट? वो आपको टारगेट करेगा। तो इसलिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आपको जो है आपकी वीकनेस को जो है थोड़ा हाइड करना पड़ेगा, लोगों से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा, राइट? एंड देन आप देखिए कि उसको आप कैसे इरेडिकेट करोगे। कि लॉन्ग टर्म प्लान ये होनी चाहिए कि वो जो वीकनेसेस आपने आइडेंटिफाई की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए उसको इरेडिकेशन के लिए। यू नीड टू हैव लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू इरेडिकेट दोज वीकनेस। उसके लिए बड़ा सिस्टमेटिक प्लान करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब कहीं आप, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है रोहित शर्मा। आप अगर देखें, आप ना रोहित शर्मा को अगर राइट फ्रॉम पहले देखे होंगे तो रोहित शर्मा वाज आल्सो हैविंग दैट वीकनेस टू बिगिन विद, but it was not exposed. Later on, he, very quickly he addressed that, and he started playing comfortably even bouncy ball as well. And and as a result of that, he's more consistent as compared to these two players. He is more consistent. उसका रीजन वो है कि आपका जो भी आपकी वीकनेसेस है, आपको एक लिमिटेड तौर पे आपको उसको हाइड करना है, लॉन्ग टर्म पे आपको उसको इरेडिकेट करना है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपको पता चलेगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट? अपॉर्चुनिटीज नियर टर्म में क्या होगी, अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में क्या होगी, आपके चैलेंजेस क्या होंगे। क्योंकि बेस्ड ऑन योर वीकनेसेस यू विल बी नोइंग दैट व्हाट वुड बी योर चैलेंजेस, राइट? जो चैलेंजेस है उसको चैलेंजेस को आपको अपॉर्चुनिटीज में आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो दैट आल्सो कैन बी कन्वर्टेड, राइट? जो आपकी वीकनेस है उसको आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया, आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट करोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू गेट रीड ऑफ फेलियर्स, टू डाइजेस्ट द फेलियर। मतलब फेलियर डाइजेस्ट करने के लिए भी देखो कैसा है ना, फेलियर डाइजेस्ट क्यों होगा। जैसे कि मान लो आपकी कोई गलती हुई, राइट? आपका वीकनेस था, गलती हुई, लेकिन आपको पता है कि भाई ये तो मेरी वीकनेस है लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ भी है, राइट? मेरे पास स्ट्रेंथ भी है। जैसे कि मान लो आप क्रिकेटर हो, आपकी वीकनेस है एक शॉर्ट बॉल पे आप आउट होते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है भाई, मेरे पास ए शॉट भी है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है। So what I'm going to do, whenever that would be a bouncy ball, I'm going to leave that, and whenever the ball is right in between my bat, I'm going to hit that. तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप मायूस नहीं होंगे। आप फेलियर होंगे, एक मैच में आप आउट होंगे, लेकिन आप मायूस नहीं होंगे। एक एग्जाम में आप फेलियर होंगे लेकिन आप मायूस नहीं होंगे, दूसरे एग्जाम में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। मतलब क्या होगा, आपने फेलियर को डाइजेस्ट करना सीखा, फेलियर को आपने कन्वर्ट किया, फेलियर को आपने सक्सेस में कन्वर्ट किया। तो इसीलिए आपका शॉक एनालिसिस वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। दूसरा ये है कि इंट्रोस्पेक्ट, दूसरा साइंटिफिक मेथड है इंट्रोस्पेक्ट। आस्क योरसेल्फ, क्या इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको पूछना है अपने आप को कि मुझे स्टडी हैबिट्स है क्या, स्टडी स्किल्स। देखिए, स्टडी हैबिट्स और स्टडी स्किल इज नॉट ओनली किताब पढ़ना,
राइट। आप ये मत समझिए कि मैं किताब पढ़ने की बात कर रहा हूँ। स्टडी हैबिट्स का मतलब ये होता है कि भाई हम क्या क्या मतलब राइट, लेट अस से आई एम हैविंग इंटरेक्शन विद माय फेलो फ्रेंड, राइट। आउट ऑफ दैट इंटरेक्शन आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑल्सो आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग, राइट। आपको आप क्योंकि आप टीचर नहीं हो, लेकिन अगर मान लो कोई टीचर अगर इस लेक्चर इस इंटरेक्शन को सुन रहे होंगे तो वो अप्रिशिएट करेंगे कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंसेप्ट जब हम पढ़ाने के पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, कुछ कुछ कंसेप्ट, लेकिन जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं अपने आप वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, राइट। दिस इज हैपनिंग, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमें ये मतलब वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग इज नॉट ओनली बुक रीडिंग, स्टडी हैबिट्स, स्टडी स्किल डजंट मीन दैट ओनली बुक रीडिंग, बुक रीडिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट, बट मतलब एवरी एक्टिविटी, वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, उससे आप क्या सीख रहे हो, ये सीखने का तरीका, ये आपने मतलब आपके इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या मेरे पास है। कंप्यूटर लिटरेसी आजकल जो है, आपको अगर सही मायनों में सक्सेस फेलियर को अगर सक्सेस में कन्वर्ट करना है तो कंप्यूटर लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कोविड 19 ने अभी हमें मतलब मजबूर कर दिया, एवरीबडी लाइक नीड टू डू ऑनलाइन एक्टिविटी। अभी सभी टीचर्स, जो टीचर्स कंप्यूटर कंप्यूटर को लेकर उनके कुछ इश्यू होंगे, दे आर गोइंग टू हैव वेरी टफ टाइम, और दे नीड टू गेट देमसेल्फ एजुकेट कंप्यूटर एजुकेटेड, राइट। तो लेकिन अगर आपके, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर सक्सेस मतलब रेट बढ़ाना है तो कंप्यूटर लिटरेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल रिचनेस आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैं हर कुछ करके देखता हूँ क्या। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लैब में जब बच्चे आते तो हम ग्रुप में एक्सपेरिमेंट करवाते, तो क्या होता है कभी कभी स्टूडेंट, उसमें से एक दो स्टूडेंट, 5-6 का ग्रुप होता है, एक दो स्टूडेंट सामने आके एक्सपेरिमेंट करते, बाकी लोग जो ऑब्जर्व करते, दे आर वेरी गुड इन ऑब्जर्विंग, राइट। दे नेवर कम फॉरवर्ड एंड डू द एक्सपेरिमेंट। कुछ स्मार्ट बच्चे होते वो दे ऑलवेज ऑन फ्रंट, राइट। वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं, वो उनको लगता है कि भाई ठीक है ये पीछे रहता है क्या, रहने दो, मैं ये मुझे फोर्स करता है करने का, मैं करता हूँ, क्योंकि वेन एवर आई एम डूइंग एक्सपेरिमेंट आई एम गोइंग टू लर्न मेनी थिंग आउट ऑफ दैट। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल रीचनेस क्यों बता रहा हूँ, कि जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है, आप कुछ भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपेरिमेंट है, आप कर रहे हो, आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि हर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का रोल क्या है। आप कुछ भी एक्टिविटी, आप स्पोर्ट्स की बात लीजिए, आप किसी स्पोर्ट खेलने वाले हो, आप स्पोर्ट्स थियरी में आपको पता होगा हर्षा भोगले इज वन ऑफ द वेरी गुड कमेंटेटर, बट ही हैज नेवर प्लेड नेशनल, आई मीन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे वो कहीं फेमस नहीं कर पाया अपने आप को, लेकिन नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो अगर खेलने लगा तो इज ही गोइंग टू कोप अप, नो, बिकॉज ही डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग, राइट। इसीलिए अगर आपको परिपूर्ण होना है, अगर आपको फेलियर को मिनिमाइज करना है, अगर आपको फेलियर को डाइजेस्ट करना सीखना है, तो आपको एक्सपेरिमेंटल रिचनेस होना बहुत जरूरी है। मतलब आप करते ही रहना चाहिए, जो भी मौका आया उसको करो, डोंट डोंट वरी अबाउट फेलियर। बहुत बार हम करते कि हम फेलियर को एंटिसिपेट करते कि नहीं नहीं मैं ये करने से तो फेल होऊंगा। जैसे कि मान लो, मुझे याद है एक 7-8-10 साल पहले मैं क्या करता हूँ, एमएससी के बच्चों को कंपलसरी सामने आकर बोलने के लिए कहता हूँ। देयर वाज वन स्टूडेंट, उसको मैंने कहा कि नथिंग डूइंग, आपको आज सामने आना ही है और 5 मिनट आपको इंग्लिश में बोलना ही है। सो ही स्टार्टेड क्राइंग। और अब बाद में आपको मैं एग्जांपल बोलता हूँ एक स्टूडेंट का, वहां तब तो रोने लगा, गुस्सा हुआ, तब मेरे सामने तो गुस्सा हुआ बयान नहीं कर पाया, लेकिन क्लास होने के बाद बाहर वो बाकी बच्चों के साथ कहने लगा कि मैं तो सिरसाट को अभी छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि इसने मुझे लड़कियों के सामने ह्यूमिलेट किया। हालांकि मेरा कोई मकसद नहीं था उसको ह्यूमिलेट करना, आई थॉट दैट ही इज हैविंग सम इश्यूज, फोबिया है उसके दिमाग में, वो फोबिया को मैं निकालना चाहता था, इसलिए मैं उसको फोर्सफुली खड़ा किया। उसने बोला भी, ऐसा नहीं कि बोला नहीं, बट गुस्से में था वो। एमएससी में पूरा पूरा 2 साल वो गुस्से में रहा मेरे साथ, सामने तो उसने कभी एग्रेशन बताया नहीं, लेकिन मैं एक मेरा ही एक स्टूडेंट मुझे आके कहने लगा कि सर वो स्टूडेंट से बच के रहो कि वो आपको पीट सकता है। क्यों? मैंने कहा क्यों भाई? तो उसने कहा कि सर वो आपने ऐसा ऐसा किया ना, तो उसने ऐसा ऐसा बाहर बोला है। सो आई वाज लिस्ट बॉदर्ड, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं, वो खाली बोला क्योंकि वो गुस्सा था उसका। तो लेकिन आपको आगे की बात बोलता हूँ कि 2 साल बाद जब एमएससी होकर वो बाहर गया, बाहर जाने के बाद एक दिन अचानक वो आया और मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आया, टाई का एक बॉक्स लेकर आया, जिसका नाम नहीं बताऊंगा, अगर वो होगा कि सुन रहा होगा तो वो भी जानेगा कि उसी की बात कर रहा हूँ मैं। टाई की एक बॉक्स लेकर आया, कहने लगा कि सर आपके लिए गिफ्ट है, तो मैं ऐसे ऐसे जगह पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक कन्फेस करना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, आपने मुझे डांटा था, आपने मुझे फोर्स किया था, और बाहर मैंने बच्चों के सामने एक कमेंट किया था कि मैं सर को अभी पीटने वाला हूँ।
लेकिन सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तब तो मैं रिग्रेट कर नहीं पाया, लेकिन आज मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने तब वो दिनों में मैंने आपके बारे में ऐसा कहा, लेकिन आपने सर फोर्स किया, इसलिए तब मैं बोला, और तब से जो है जो फोबिया था वो मेरा निकल गया। एंड आई एम रियली गुड वेरी आउटस्पोकन पर्सन इन माय ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रेडिट गोज टू यू। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। एंड देन नेक्स्ट इज प्रोफिशिएंसी इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि भाई आप किसी भी लैंग्वेज में देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको इंग्लिश ही अच्छी आनी चाहिए। इफ यू कैन स्पीक गुड इन इंग्लिश, फाइन, राइट, एटलीस्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपको आनी चाहिए, दिस इज ट्रू। क्योंकि आप अगर बाहर जाते हो तो आप अगर कम्युनिकेटिव भी इंग्लिश नहीं बोलेंगे, फॉरगेट अबाउट ग्रामर, लेकिन आपको कम से कम कम्युनिकेट कर, मतलब आप जो बोलना चाहते हो कम से कम यू मस्ट बी एबल टू रीच द पीपल, इतना भी अगर आप कर पाओ। एंड मोर ओवर किसी एक लैंग्वेज में, वो चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, या व्हाटएवर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज हो, कोई अगर आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, व्हाटएवर, तो आप किसी भी लैंग्वेज में आपका प्रोफिशिएंसी ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी गुड। आई मीन आपको अच्छी तरीके से अपने आप को पेश करते आना चाहिए। अगर आप कर पाओ तो आपको फेलियर्स, रिलेटिवली कम फेलियर्स आएंगे। एंड मोर ओवर अगर आते भी है तो आप उससे डिमोरलाइज नहीं होंगे, आपको पता रहेगा कि यार मुझे तो आता है ये, लेकिन आज मैं फेलियर हुआ हूं, लेकिन डेफिनेटली मुझे आता है, थोड़ी कमियां रही है, आई एम गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल। एंड लास्ट इज फिजिकल फिटनेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली आप सभी लोग सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी का मैं बहुत बार बोलता हूँ, बहुत जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं ये वर्ड वर्ड से काफी परिचित है, क्योंकि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप सूर्यवंशी हो। क्योंकि सूर्यवंशी का मतलब क्या है, जब तक सूरज नहीं दिखता तब तक आप उठते ही नहीं, रात में 2-2, 3-3 बजे तक आप सोते नहीं, और सवेरे जो है 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक उठते नहीं हो आप। अब क्लास अगर 10 बजे है तो 9 बजे उठेंगे। बहुत बहुत बच्चे तो ऐसे है कि 9:30 को उठते, वैसे ही निकल के अब क्लास को अटेंड करने के लिए आते। ये दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। तो आपका, क्योंकि फिजिकल फिट रहेंगे कैसे आप अगर स्टूडेंट लाइफ में ही एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिट कैसे रह पाओगे आप? फेलियर, आप देखिए, आपको पता होगा विराट कोहली, आपको पता होगा कि विराट कोहली इज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल प्लेयर, राइट। वो खुद नॉन वेजिटेरियन था, आपको सबको पता होगा, लेकिन क्योंकि अपने आप को फिट रखने के लिए, नॉनवेज खाना गलत है ऐसा मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, वो मेरा इंटेंशन भी नहीं है, क्योंकि मैं वो बोलना भी नहीं चाहता, ना तो मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, ना तो उसके अपोज में बोलना चाहता हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि विराट कोहली ने अपने आप को फिट रखने के लिए नॉनवेज खाना बंद कर दिया, कैन यू इमेजिन? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उसने करना बंद कर दिया। तो फिजिकल फिटनेस, क्योंकि उसने सोचा कि मुझे अगर क्रिकेट में अगर सक्सेस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो मुझे फिट रहना बड़ा जरूरी है। वैसे भी हमें आप मतलब कहीं पर भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फिट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर हो आप 1 घंटा अगर खड़े नहीं रह सकते तो आप कैसे कैसे सक्सेस होंगे? बच्चों को आप डिफेंड कैसे करोगे आप? क्योंकि कल आगे चलकर आप टीचर बन सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हो आप। इसलिए ये जो फिजिकल फिटनेस जो है वो आदत जो है अभी से आपको लगानी होगी। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। ये जो 5 बातें जो मैंने बताई, ये अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका फेलियर का परसेंट कम होगा, और मान लो फेलियर होते भी है आप, तो भी आप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, आप उससे डिमोरलाइज नहीं होंगे। तीसरा साइंटिफिक मेथड है कि कल्टीवेट हैबिट्स। मैं 6 हैबिट्स आपको बताऊंगा। आई वुड लाइक यू टू कल्टीवेट दो 6 हैबिट्स। व्हाट आर दो 6 हैबिट्स? सबसे पहले, यू नीड टू बी गुड रीडर। अब रीडर क्यों क्यों गुड रीडर? मैं ये देखिए, जो भी मैं बता रहा हूं, ये मेरा 2 टारगेट है। वन है, फर्स्ट पहला टारगेट ये है, या तो आपको फेलियर ना मिले, और जैसे मैंने बताया कि फेलियर तो आप 100% अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लो आप फेलियर होते भी हो तो आप उससे मायूस नहीं होंगे, आप उसको डाइजेस्ट करना सीखोगे, आप उससे एक लर्निंग स्टेप के तौर पे उसको आप ट्रीट करोगे, राइट। उसके लिए आपको क्या कर, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप है कि कल्टिवेट 6 हैबिट्स। व्हाट आर दोस? फर्स्ट हैबिट इज रीडर, यू नीड टू बी गुड रीडर। रीडर का मतलब ये है कि आजकल रीडिंग हैबिट्स हमने बंद कर दी है। बच्चे किताबें ही नहीं पढ़ते, बच्चों को लगता है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यस आई एग्री, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सेल, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप किताबें पढ़ना बंद करो। आपको मतलब इट्स नॉट ओनली खाली आपके सिलेबस की किताबें पढ़ना ऐसी जरूर नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि भाई आपको एक अपना आइडियल चुनना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, महात्मा फुले है, लाल बहादुर शास्त्री है, व्हाटएवर, जो भी आपके आइडियल्स है, उनके किताबें, उनका लाइफ टाइम उन्होंने क्या किया, कैसा स्ट्रगल उन्होंने किया, ताकि उससे कुछ आपको इंस्पिरेशन मिले। आजकल अपार्ट फ्रॉम करिकुलम, करिकुलम तो पढ़ना ही है आपको, अपार्ट फ्रॉम करिकुलम आजकल आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेटेस्ट करंट साइंस क्या है, सोशल एक्टिविटीज क्या है, पॉलिटिकल हैपनिंग्स क्या है,
इकोनॉमिकल अप एंड डाउन क्या है, ये अपने आप को इसको जो है ना, इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल गाय, देन यू नीड टू गेट योर सेल्फ अवेयर, अपडेटेड विद ऑल दोस। इसलिए पढ़ने की आदत बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है यू नीड टू बी गुड लिसनर। हमारा मतलब इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट, सभी लोगों का एक बड़ा दुर्गुण है कि हम सुनना ही नहीं चाहते। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं अल्टीमेट हूं, मुझे जो आता इससे ज्यादा मतलब मेरे से ज्यादा किसी को आता ही नहीं, इसलिए सुनने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर इफ यू रियली वांट टू एनरिच योर सेल्फ, यू नीड टू बी गुड लिसनर। इसलिए आपको पता हो, आपको शायद, आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं होंगे तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे उनको पता है कि स्कूलों में हेड डाउन की आदत लगाते बच्चों को। हेड डाउन मतलब एक क्लास होता है, एक लेक्चर ऐसा होता है कि आप आधा घंटा बच्चे हेड डाउन करके बैठेंगे। फॉरेन कंट्रीज में इवन पीजी क्लास में भी हेड डाउन की ये है। मतलब जैसे मैं कोरिया में गया था, ताइवान में गया था पढ़ाने के लिए, तो मेरे 3 घंटे का लेक्चर हुआ करता था वहां पर। तो 3 घंटे में एक 15 मिनट हेड डाउन का ड्यूरेशन था। तो बच्चे क्या करते, लिटरली सोते थे बच्चे। मतलब 1.5 घंटे के बाद बच्चों को लिटरली, अगर बंद ना करूं तो भी बच्चे सो जाएंगे हेड डाउन करके। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो लिसनर का मतलब ये है कि भाई आप, अगर आपसे बड़ा कोई है, बड़ा नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ एज ओनली, बड़ा ही कुड बी इन टर्म्स ऑफ एज आल्सो। जैसे कि आपकी माँ है, आपके पिता है, आपका एल्डर ब्रदर है, आपकी बहन है, आपका फ्रेंड है, आपके टीचर्स है, आपसे बड़े बाय एज एज वेल एज बाय नॉलेज। कभी कभी हमसे उम्र से छोटा होगा लेकिन नॉलेज से बड़ा होगा, आप उनसे भी सुनिए, सुनने की आदत लगाइए। अगर ये हैबिट्स अगर नहीं होगी तो आप अपने आप को एनरीच नहीं कर पाओगे। तो लिस्ट, यू नीड टू बी गुड लिसनर। थर्ड है यू नीड टू बी गुड ऑब्जर्वर। मतलब हमारे आसपास जब हम, जैसे मान लो मैं आई स्टार्टेड वॉकिंग, मैं यूनिवर्सिटी में मेरे डिपार्टमेंट से निकला हूँ, मेन बिल्डिंग जा रहा हूँ, आई स्टार्टेड वॉकिंग, राइट। तो चलते समय आई नीड टू बी गुड ऑब्जर्वर, व्हाट इज हैपनिंग एल्सवेयर। बोटेनिकल गार्डन है, क्या क्या है वहां पर, राइट। कुछ बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छे एक्टिविटीज बच्चे कर रहे हैं, राइट। क्या मैं उससे सीख सकता हूँ क्या, राइट। सो लाइक वी नीड टू बी गुड ऑब्जर्वर। आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप कहीं फॉरेन कंट्री गए हो, कहीं दूसरे सिटी में गए हो, आप कुछ कुछ इंसिडेंट्स देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, so you need to be good observer, right? So unless you are good observer, you cannot enrich yourself. So आप अच्छे रीडर हो, आप अच्छे लिसनर हो, अच्छे ऑब्जर्वर हो, क्या होगा इस तीनों से, आपके पास यू विल हैविंग बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। सो यू नीड टू बी गुड एनालिसिस, बिकॉज आप अगर उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे, आपके पास इंफॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चे हैं कि नॉलेज तो बहुत है लेकिन सी स्टिल उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। उसका रीजन है कि वो प्रॉपर एनालिसिस ही नहीं करता, राइट। इसलिए यू नीड टू बी गुड एनालिस्ट। अच्छा, एनालिसिस भी किया लेकिन आपने एग्जीक्यूशन के लिए प्लान ही नहीं बनाया, सो यू नीड टू बी गुड प्लानर ऑल्सो। क्योंकि अगर एनालिसिस किया लेकिन प्लान नहीं बना पाए आप, सो यू नीड टू बी गुड प्लानर। प्लान भी बना पाए लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। मतलब कुछ लोग होते हैं कि उनके पास सब कुछ है, प्लान भी है, आइडियाज भी है, बट ही इज नॉट गुड एग्जीक्यूटर, राइट। ही इज नॉट गुड एक्शन टेकर। तो आपको एक्शन टेकर भी बनना है। तो ये 6 आदतें जो है ना आपको कल्टिवेट करनी पड़ेगी। यू नीड टू बी गुड रीडर, you need to be good listener, you need to be good observer, you need to be good analysis, you need to be planner and action taker. So this was third scientific method. And आखिरी जो है, cultivate 5 qualities, right? So चौथी, जो फोर्थ जो मेथड, साइंटिफिक मेथड है फेलियर कम करने की या फेलियर डाइजेस्ट करने के लिए, दैट इज कल्टिवेट 5 क्वालिटीज। व्हाट आर दोस 5 क्वालिटीज? हर स्टूडेंट के पास, इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट, स्टूडेंट तो खैर मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्योंकि स्टूडेंट ऑडियंस है इसलिए मैं ये स्टूडेंट को मतलब ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन वट एवर आई एम स्पीकिंग दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, फॉर मी एज वेल, राइट। तो हर स्टूडेंट को 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कल जो कंप्यूटर साइंस में के डिपार्टमेंट ने एक टॉक शो ऑर्गेनाइज किया था, वो टॉक शो में मुकुंद कुलकर्णी साहब का कल लेक्चर था, मतलब इंटरेक्शन था। उन्होंने बड़े 2 इम्पोर्टेंट सवाल किए थे जो मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने बोला था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट टू गो टू द कॉलेज। मतलब जितने भी आजकल एडमिशन लेते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो सही मायनों में कॉलेज जाना चाहते हैं, दिखते हैं कॉलेज में लेकिन एक्चुअल कितना माइंडसेट कितने बच्चों का होता है। उन्होंने कहा कि अराउंड 30-40%, राइट, एंड दिस इज ट्रू, अराउंड 30-40%। एंड दूसरा सवाल था कि हाउ मेनी स्टूडेंट जो 30% जाती भी है, बसती बैठती भी है, हाउ मेनी ऑफ देम वांट टू लर्न द सब्जेक्ट, राइट। ये मैं इसलिए 2 सवाल मुझे अच्छे लगे, आप मुझे लगा कि आपको बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोलना चाहा कि मुझे ऐसा लगा कि क्यों बोलूं मैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो है मतलब या तो क्लास में जाते नहीं है,
अगर मान लो जाते भी हैं तो उनका जो है पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो इसीलिए ये जो दो सवाल थे, वो सवाल ये 5 क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। जो 5 क्वालिटीज अगर आपके पास है तो ये इश्यूज आपके पास नहीं होंगे। व्हाट आर दोस 5 क्वालिटीज? लेट मी टेल यू। विद्यार्थी मीन्स व्हाट? विद्या मीन्स नॉलेज एंड अर्थी मीन्स द वन हु acquires the knowledge, desires the knowledge. It means विद्यार्थी कौन होता है? One who desires the knowledge. तो उसके 5 क्वालिटीज जो है, अगर आप somehow अगर इसको अगर कल्टिवेट कर पाओ तो यू आर गोइंग टू बी वंडरफुल पर्सन एंड यू आर नॉट गोइंग टू टेस्ट फेल्योर एट एनी टाइम, राइट? तो पहली क्वालिटी है काकचेष्टा। 5 क्वालिटीज मैं आपको पढ़ के बताऊं पहले। काकचेष्टा, बको दहनम, स्वान निद्रा, अल्प आर्य एंड गृह त्यागी। ये 5 क्वालिटीज है, राइट? मैं आपको वन बाय वन आपको बताऊंगा विद एग्जांपल। काकचेष्टा, व्हाट इज काकचेष्टा? आपने देखा होगा, काक मीन्स क्रो एंड चेष्टा मीन्स एफर्ट्स, राइट? आपने वो, आप जब छोटे होंगे, स्कूल में होंगे आप, या स्कूल में, यस स्कूल में, तो आपने वो थर्स्टी क्रो का एक स्टोरी सुना होगा। देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, ही वाज फ्लाइंग सर्चिंग वाटर, somehow he got picture, right? मटका मिला उसको, एंड देन मटके ने देखा उसमें, तो उसके बॉटम में पानी था। बेचारे की चोंच तो वहां तक जा नहीं सकती थी, इसलिए वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं। एंड देन उसने देखा कि कुछ टाइनी स्टोन्स उसको दिखाई दिए, एंड ही स्टार्टेड पिकिंग दोस टाइनी स्टोन्स बाय हिज बिग, राइट? एंड स्टार्टेड पुटिंग इन द, वो मटके में वो उसने पिक्चर में डालना शुरू किया। आप इमेजिन करिए कि छोटा सा कौवा है, उसकी छोटी सी चोंच है, अगर एक एक पत्थर उठा के डालेगा तो कितना समय जाएगा। बट he was having enough patience to pick up those stones and put it into the that pitcher. वो करते गया and all of a sudden he could see the water at the water, जो बॉटम में था वो उसके रीम तक आया, and he could quench his thirst. ये स्टोरी क्या दर्शाता है? ये स्टोरी ये दर्शाता है कि यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी पेशेंसफुल एफर्ट्स। अगर आपको अगर सही मायनों में जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है, फेलियर अगर कम करना है, तो उसके जैसा आपको बनना पड़ेगा, उसके पेशेंसफुल एफर्ट्स के साथ आपको आगे चलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा। ये 1928 की बात है, जब हमारे पास साइमन कमीशन आया था इंडिया में। बाबा साहब बॉम्बे में किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो साइमन कमीशन का प्रॉब्लम ये था कि वो इंडियन एक्ट के रिलेटेड कुछ कमीशन था, एक इंडियन एक्ट गवर्नमेंट बनानी चाहती थी तब, इंग्लैंड गवर्नमेंट, एंड देन उसमें लेकिन कमीशन में कोई इंडियन नहीं था, तो हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने उसको बाइकआउट किया था। वो कह रहे थे कि नहीं हम अभी इसको कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसलिए साइमन गो बैक आपने वो सुना होगा। लेकिन बाबा साहब, क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज विक्टिमाइज ऑफ द सिचुएशन, परिस्थितियां, कास्टिज्म जो बड़े चोटी पे था वो दिनों में, तो खुद बाबा साहब ने राइट फ्रॉम ही चाइल्डहुड खुद सहा था उन्होंने। और इट्स नॉट ओनली चाइल्डहुड, जब वो बैरिस्टर बन के आए, फॉरेन से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए, उसके बावजूद भी कास्टिज्म के मतलब उनको सहना पड़ा। तो उनको लगा कि भाई अभी यहाँ तो मुझे कोई मेरे लोगों को, नॉट ही नेवर वर्क फॉर हिमसेल्फ, बट उनको लगा कि मेरा जो समाज है इनको यहाँ इंडिया में तो कोई न्याय मिल नहीं रहा, तो लेट मी सी वेदर दिस साइमन इज गोइंग टू प्रोवाइड अस सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो मैं उनके साथ बात करूंगा, उन्होंने डिक्लेयर किया। एंड देन उन दिनों में सब न्यूज़पेपर में बाबा साहब के खिलाफ लिखना शुरू किया लोगों ने कि बाबा साहब ऐसा है वैसा है, राइट? एंड देन जिस क्लास में बाबा साहब पढ़ाते थे, वो क्लास में एक बच्चा था जो कि किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता था। तो उसको जब पता चला कि बाबा साहब मिलने वाले हैं, तो ही स्टार्टेड ही वाज फ्रस्ट्रेटेड, राइट? एंड देन जब बाबा साहब ने जब पढ़ाना शुरू किया, तो बाबा साहब को वो भला बुरा कहने लगा कि आप गलत हो, ऐसा हो वैसा हो। बाबा साहब ने बड़ी कोशिश की उस समझाने की, लेकिन वो समझ नहीं पाया, क्योंकि बच्चा था, वो गलत नहीं था, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी। बाबा साहब की बात अलग थी, बाबा साहब इतने बड़े थे, वो कहाँ वो बच्चा समझ सकता। तो वो बच्चा समझ नहीं पाया, ही लेफ्ट द क्लास। लेकिन उसने खाली क्लास छोड़ के वहां शांत नहीं बैठा, उसने क्या किया, दूसरे दिन बाकी सब बच्चों को भी मिसलीड करके सबको क्लास के बाहर निकाल दिया। एंड दूसरे दिन से कोई बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, लेकिन बाबा साहब वॉज वेरी पेशेंसफुल, वो फिर भी क्लास में आते रहे और वो चेयर पे बैठ के अपना पढ़ना शुरू किया। ये स्टूडेंट को लगा कि यार ये क्या कैसा आदमी है, मैंने सब बच्चों को भगाया फिर भी आके क्लास में बैठ रहे। तो उन्होंने एक बड़ी सी घंटा लेकर आए और वो बाबा सब अंदर पढ़ रहे, ये दरवाजे में आके घंटा बजा रहा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बाबा साहब बिल्कुल ही विचलित नहीं हुए। तो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन ये विचलित क्यों नहीं हो रहे। एक दिन वो तरस, मतलब वो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड केम टू द बाबा साहेब अम्बेडकर, कि कहने लगे कि बाबा साहब मुझे सरप्राइज हो रहा है कि मैंने इतनी मतलब कोशिश की आपको तकलीफ देने की,
मतलब मैंने दी आपको तकलीफ, उसके बावजूद भी आप विचलित नहीं हुए और आप शांत बैठे रहे, आप ना तो मुझे डांटे, आपने मुझे डांटा भी नहीं, तो ऐसा कैसे? तो बाबा साहब ने कहा कि देखो बेटा, आप जो कर रहे हो, आप अभी जो किया दैट वाज रॉन्ग, लेकिन आपकी जो भावना है, मैं भावना को समझ सकता हूँ। मतलब आप चाहते हो कि मैं साइमन कमीशन को ना मिलूं, आपकी जगह पे आप सही हो, लेकिन आपको पता नहीं कि हम लोगों ने क्या तकलीफें सही है, क्योंकि मुझे पता है, इसलिए आप समझ नहीं पाए। आप अगर फिर वो बच्चा कहने लगा कि ठीक है बाबा साहब, मैं सुनना चाहता हूँ, एंड देन ही सैट इन द क्लास, वो पूरा सुन लिया, सुनने के बाद ही गॉट कन्विंस, एंड देन लेटर ऑन ही बिकेम अ वेरी लाइक पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ बाबा साहब, एंड बाबा साहब को फॉलो करने लगा। और ये एग्जाम्पल मैंने क्यों बताया कि जो एफर्ट्स होते हैं ना, पेशेंस जो है ना, पेशेंस अगर हमारा है ना, तो हम किसी भी मतलब परिस्थितियां कैसी भी क्यों नहीं होती, हम उससे हारेंगे नहीं। सो दिस इज व्हाट द टॉक चेस्टा मीन्स। तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये है बको दहमम। बको दहनम का मतलब क्या है? द इंटेंस, बको दहनम का मतलब है इंटेंस फोकस। इंटेंस फोकस लाइक क्रेन। आपको पता होगा क्रेन कैसा होता है ना, क्रेन ऑलवेज स्टैंड ऑन सिंगल लेग, राइट, एंड व्हाट ही डूज, ही ऑलवेज कीप ऑन ऑब्जर्विंग वाटर, राइट। पानी मतलब वहां की जो फिशेस होते हैं ना, वो खाने की कोशिश करता है, एंड ही इज ऑलवेज वेरी, उसका फोकस एक पॉइंट पे होता है। कभी भी देखता है कि भाई यहाँ पर जो भी मछली आई वो आकर मैं उसको खा लूंगा, लेकिन ये करते समय वो देखेगा कि ही विल अलाउ स्मॉल फिशेस टू स्विम अराउंड, एंड ही विल बी वेटिंग फॉर द बिग फिशेस, क्योंकि उसको पता है कि क्योंकि पानी में छोटी फिशेस भी होंगी, बड़ी भी होंगी, अगर छोटी फिशेस पे अगर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करने लगू, तो बड़ी फिश तो अलर्ट हो जाएगी, वो आएगी ही नहीं। तो इसलिए व्हाट ही नीड टू डू, इफ यू वांट टू फोकस ऑन बिग फिश, ही नीड टू allow that small fishes to swim around, so that he will be able to focus on big fish, and he can tap those big fishes. हमारा लाइफ भी ऐसा है। लाइफ में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि देर आर मेनी मेनी इश्यूज, कभी कभी इंटरपर्सनल इश्यूज होते हैं, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन दो इश्यूज आर वेरी स्मॉल इश्यूज। हमारा जो मेन फोकस होगा, वो मेन फोकस से अगर ये इस छोटे छोटे इश्यू से हम भटक जाएंगे ना, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, इसलिए कभी भी हम फेल्योर का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पर इंटेंस फोकस का, एक सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली का। मुझे याद है कुछ कुछ साल पहले जब विराट कोहली जब उभर रहा था, तब क्योंकि विराट कोहली वाज प्लेइंग वेरी, अभी भी अच्छा खेलता है, लेकिन वो दिनों में बहुत अच्छा खेल रहा था, एंड देन ही वाज फॉलोइंग सचिन तेंदुलकर। किसी पत्रकार ने सचिन तेंदुलकर को पूछा कि भाई आप, ये जो विराट है नया बच्चा है, ही इज प्लेइंग रियली वंडरफुल, वो आपको फॉलो कर रहा है, और ऐसा हो सकता है कि एक दिन आएगा वो आपके सभी रिकॉर्ड बीट करेगा, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस, व्हाट विल बी एडवाइस टू विराट कोहली? तो विराट कोहली ने कहा, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही इज ए गुड प्लेयर, उसको पता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट खाली एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक बात मैं यहाँ रखना चाहूंगा, वो कि वट एवर सक्सेस ही इज गोइंग टू गेट, ही नीड टू मेक इट श्योर दैट हिज फीट्स आर ऑलवेज टचिंग टू द ग्राउंड। मतलब जीवन में वो कितना भी सक्सेस क्यों नहीं होता, लेकिन अगर अगर उसने अपने पैर अगर मान लो, मतलब ही नीड टू एंश्योर दैट हिज फीट्स आर टचिंग टू द ग्राउंड, मतलब क्या है कि हवा में नहीं रहना चाहिए, मतलब अपना फोकस जो है, फोकस को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि विराट कोहली ने बीच में मतलब दो इंसिडेंसेस थे। एक था कि मुझे याद है, वो ये कोई प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का, जो उसके पीछे हेड के पीछे भाग पर बॉल लगने से ही डाइड। उस सीरीज में लाइक जॉनसन नाम का एक फास्ट प्लेयर था, बॉलर था, उसने विराट कोहली को कितना उकसाया, बस इन स्पाइट ऑफ दैट ही कीप इट पेशेंस। उसका गोल, उसको पता था कि ये मुझे उकसा रहा है, मुझे उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा गोल है सेंचुरीज हिट करना। ही स्टार्टेड हिटिंग सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरी, ही वाज द ओनली प्लेयर हु प्लेड रियली वंडरफुल। लेकिन बाद में एक दौर आया कि वो थोड़ा भटक गया, मैं वो नहीं, मतलब बुरा एग्जांपल कोट नहीं करना चाहूंगा, कुछ रीजन, फॉर सम रीजन ही वाज लाइक डेविएटेड, राइट, अपने गोल से डेविएट हुआ, एंड देन ही वाज फेलियर फॉर मोस्ट ऑफ द मैचेस इन दैट सीरीज। तो मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो छोटी छोटी बातें आपके लाइफ में होती रहेंगी, बट आपका फोकस जो है वो बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है श्वान निद्रा। व्हाट इज श्वान? श्वान मीन्स अ डॉग, निद्रा मीन्स स्लीप। आपको आपको जो है इसको देखना पड़ेगा कि श्वान निद्रा में स्लीप ऑफ डॉग, राइट, इट डजंट मीन दैट स्लीप ऑफ डॉग, अलर्टनेस ऑफ डॉग। आपको पता है कि जब भी डॉग सोता है, आप मान लो आप किसी घर में गए हो, तो आप अगर अगर कोई डॉग अगर आपको सोता हुआ दिखाई देता, आप कभी भी रिस्क नहीं लेते। आप डॉग अगर दिख रहा है, वो अगर बंधा हुआ नहीं, आप रिस्क नहीं लेंगे, आप आपके फ्रेंड को फोन करेंगे, मैं आया हूँ, आपका डॉग बाहर है, आई एम डाउटफुल, राइट।
क्योंकि आपको पता है कि अगर डॉग ऐसा होता है कि उसके थोड़ी भी हलचल अगर हुई तो वो उठ जाता है। अगर मान लो आप बाजू से स्लोली जा रहे हो, स्टिल ही इज गोइंग टू like awake. What does it mean? It means that he is going to be very, very alert. We need to practice that kind of alertness. If you really want to be a successful individual, if you really want to accept your failure, you need to practice that kind of alertness. आपको 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 बताऊं कि हमारे लाइफ में, हमारे पर्सनालिटीज में ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे, अगर अपने आप में अगर अलर्ट नहीं रहेंगे, तो आपकी जो इश्यूज है वो इश्यूज का आप एड्रेस नहीं कर पाओगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट फेलियर, यू विल नॉट बी एबल टू मिनिमाइज फेलियर, यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट योर फेलियर्स इनटू सक्सेस। यहां पर भी मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। वो एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर एंड ब्रॉड हॉक का। एग्जांपल ऐसा है कि 2007 में इन 2007 देयर वाज ए वनडे मैच, राइट? एंड उस वनडे मैच में आपको पता होगा कि वो दिनों में 2007 में तेंदुलकर वाज ए वेरी एस्टैब्लिश प्लेयर ड्यूरिंग दोज डेज टू। बाद में वो सुपर एनिमेशन लिया उन्होंने, बट ही वाज वेरी एस्टैब्लिश प्लेयर ड्यूरिंग दोज डेज टू। लेकिन ब्रॉड हॉग ये ऑस्ट्रेलियन नया प्लेयर था, उभरता हुआ स्पिनर था। अब आपको पता होगा कि क्रिकेट में अगर कोई नया प्लेयर इस्टेब्लिश प्लेयर के अगर विकेट लेता है, दैट टू क्लीन बोर्ड, उसके मतलब वैसे मतलब वो मौका कभी किसी के लिए भी जीवन में ना भुलाने वाला मौका होगा, किसी के लिए भी, मतलब देखने वाले के लिए भी, और वो प्लेयर तो खैर सवाल ही नहीं। तो दैट डे आई मीन तेंदुलकर कुड नॉट प्ले गुड, एंड जो ब्रॉडहॉक था उसने तेंदुलकर का क्लीन बोर्ड लिया, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, ही हैज सेलिब्रेटेड। तेंदुलकर बेचारे नाराज हो गए, पैवेलियन में चले गए। उस शाम में ये जो ब्रॉड हॉक था, ही वाज वेरी एक्साइटेड ना, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर की विकेट मिली, उसको क्लीन बोर्ड मिला। ही वेंट टू हिज रूम, मतलब ब्रॉड हॉक सचिन तेंदुलकर रूम में गया और कहने लगा कि सचिन, आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि मैं आपकी विकेट ले पाया हूं। तो ये बॉल है जिस बॉल से मैं विकेट लिया हूं, तो क्या इसके ऊपर मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं, क्योंकि इसको मैं मॉन्यूमेंट के तौर पे रखना चाहता हूं, एक क्योंकि मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग रहेगा ये। तो पता है तेंदुलकर ने उस बॉल पे क्या लिखा था? तेंदुलकर ने लिखा था, हिंदी में लिखा था, क्योंकि हिंदी में लिखा इसलिए ब्रॉड हॉक को बेचारे समझ में नहीं आया। उसने लिखा कि बेटा आज तो तू खुश हो जा, लेकिन ये दिन तेरे जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। यू सी व्हाट ही हैज रोट, कि ये दिन तेरे जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। मतलब उसने ये तब मतलब अपने अपने आप से एक बता दिया कि मैं ये मौका तुझे फिर कभी नहीं दूंगा। And then later on, what he must have done, he must have seen the bowling action of Broad Hogg and gone through, terrible practice and all that, right? So वो practice as a result of that, आपने बाद में देखा होगा कि जब भी तेंदुलकर और ब्रॉड हॉक सामने आया, आप अगर क्रिकेट के जानकार होंगे तो ब्रॉड हॉक को कभी भी सक्सेस नहीं मिला। Rather, every time, Tendular used to hit 4s and 6 only, right? Whether it's one day, T20 और टेस्ट क्रिकेट। तो मैं क्यों एग्जाम्पल बताया, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट हो, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बाद में उन्होंने क्या किया होगा कि सेम प्रैक्टिस की होंगी, उस किस बॉल पे मैं आउट हुआ हूँ, क्या एक्शन है इसकी। इवन फॉरगेट अबाउट ब्रॉड हॉक, इवन जो सेन वॉर्न था वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था सचिन तेंदुलकर के खिलाफ। उसका रीजन क्या है कि प्रैक्टिस, डेडिकेटेड प्रैक्टिस। तो अलर्ट नेट की भी एक प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अल्पाहारी। व्हाट इज अल्पाहारी? अल्प मीन्स लेस, आहार मीन्स फूड, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग इज लाइक देयर आर वैरायटी ऑफ आहार, राइट? हमारा टंग जो होता है ना, टंग के आहार क्या होगा? फूड होगा जो हम खाते। हमारे जो कान है उसका आहार क्या होगा? साउंड, म्यूजिक, लोग बात करते वो। एंड आईज क्या है? जो हम दिख, जैसे कि मैं भी विंडो में बैठा हूँ, सीनरी मुझे दिख रही है, लोगों को देख रहा हूँ, राइट? साइट सीइंग है। दिस इज काइंड ऑफ इनपुट वी आर गिविंग टू अवर सेंसरी ऑर्गन। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, whatever input we are providing to our sensory organ, that is going to be very important to cultivate your own personality, create your own personality, and therefore we need to be very careful about providing this input to all our sensory organ. So alfari का मतलब ये होता है कि आप you need to be very careful, you need to be very careful about providing all those inputs to your sensory organ, so that you will be always, तो आप क्या करोगे फिर? आप डिसाइड करोगे कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, क्या सही है और क्या गलत है। देखो कैसा है ना, हमारे मेमोरी का लिमिट होता है। आप अगर इंफॉर्मेशन लेते रहोगे तो स्टोर कहाँ करोगे, राइट? इसलिए यू नीड टू बी वेरी सेलेक्टिव, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है आपको समझना पड़ेगा, राइट? इसलिए ये जो सेंसरी ऑर्गन है
उसको प्रॉपर इनपुट देना चाहिए। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी है उसको प्रायोरिटाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज नहीं करोगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या अर्जेंट है, ये अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो अगेन यू विल नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, you are going to face the failure only. And moreover if you are really मतलब फेलियर आती भी है तो आप उससे आप डिमोरलाइज नहीं होंगे. सो दैट वाज द फोर्थ क्वालिटी. एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्वालिटी ग्रह त्यागी. व्हाट इज ग्रह? ग्रह मीन्स होम, त्यागी मीन्स लीव. तो उसका मीनिंग क्या होता है? लिविंग होम फॉर द परस्यूट ऑफ नॉलेज. बट ट्रूली स्पीकिंग उसका इंप्लाइड मीनिंग वो नहीं है. मीनिंग ये है कि लिविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. गृह त्यागी का मतलब क्या है? लिविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते. मतलब जो मुझे आता है मैं वही करना चाहता हूँ, जो मुझे नहीं आता वो मुझे करना ही नहीं है. मान लो मुझे पढ़ाई करते समय पढ़ने की इच्छा नहीं है, राइट? मतलब पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती मेरी, तो इसमें पढ़ूंगा ही नहीं. मैं क्या करूंगा? जब भी क्लास होगा, जब टीचर पढ़ाएगा बस उतना ही सुनूंगा, राइट? तो मैं मेरे कंफर्ट जोन के बाहर जाना ही नहीं चाहता हूँ, राइट? जैसे कि मान लो आपको टीचर ने बताया कि नथिंग डूइंग, आपको जो है लाइब्रेरी में जाना है, ये किताबें देखनी है. 7 मैंने किताब दी है, 7 किताब है, एक नहीं 7 किताब दी है. आप सभी किताबें रेफर करो और नोट्स निकालो, राइट? मतलब आपको, आपकी आदत क्या है? लेक्चर के बाद घर पे जाके सोना, ये आपकी आदत है. लेकिन टीचर ने कहा कि नथिंग डूइंग, आपको अभी लाइब्रेरी में जाना है, 7 किताब देखने हैं, आज ही नोट्स निकालने हैं, कल मुझे बतानी है. मतलब ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, सक्सेस आपको मिलेगा नहीं. सो माय फ्रेंड, दैट वाज द लास्ट क्वालिटी. तो मैं फिर से आपको समराइज करता हूं कि क्या 5 क्वालिटीज आपको होनी चाहिए आपके पास, आपने मतलब कल्टीवेट करनी चाहिए. काकचेष्टा मतलब like efforts like a crow. Bakodhama means focus like a intense focus like a crane. Sona nidra means alertness like a dog. Alpahari means always give right input to a sensory organ. And Graha Tyagi means coming out of comfort zone. अगर आप ये अगर करोगे, जितने भी मैं 4 साइंटिफिक स्टेप्स आपको बताए, ये 4 साइंटिफिक स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, यू आर नॉट गोइंग टू बी फेलियर एट ऑल. लेकिन रियलिटी ये भी है, जैसे मैंने पहले बताया और फिर से रिपीट करता हूं, कि फेलियर्स तो हमारे लाइफ में आएंगे, बट यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर फेलियर. नए 4 साइंटिफिक मेथड्स आप अगर आपके पास अगर होंगे तो क्या होगा? आप बिल्कुल बेधड़क काम करोगे ना. आपको पता है ठीक है, आज अगर मैं फेलियर भी होता हूं ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल टुमारो. ये इस माइंडसेट के साथ अब जब जाते हो ना तो आप फेलियर ही नहीं होंगे. जैसे कि मैं फिर से एक एग्जांपल कोट करूंगा और देन रुकूंगा, कि जैसे क्रिकेट में है. मान लो आप पहली मैच आपकी है, आप इंटरनेशनल टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है, पहली मैच आपकी है ना. पर्थ जैसे पिच पे ऑस्ट्रेलिया में गए खेलने के लिए, जहां बॉल आपके कान से निकल जाएगा, आपके बैट के आसपास भी नहीं रहेगा. आपको आदत नहीं है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए हो, पहला इंटरनेशनल मैच आपका है, पहली मैच आप खेल रहे हो, वहां पर सभी बॉल आपके यहाँ जाएंगे, यू नेवर नो, स्पीड भयानक होगा. तो आप अगर पहले से अगर कॉम्प्लेक्स बना के जाओगे कि यार मैं तो खेल ही नहीं पाऊंगा, राइट? मैं तो खेल ही नहीं पाऊंगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी फेलियर इन 1 or 2 बॉल्स ओनली. लेकिन एक माइंडसेट से जाओगे आप तो ठीक है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, इवन टुडे आई गॉट फेलियर. मुझे पता है कि मेरे पास कैपेबिलिटीज है, आज अगर मैं फेलियर भी होता हूं तो मुझे एक मौका 100% मिलेगा, मोरओवर 100% मिलेगा. या दूसरा है कि ठीक है ये सब बॉल आएंगे, मैं उसको छोड़ूंगा, लेकिन मैं भी उसका पेशेंस टेस्ट करूंगा. हर बाल तो वहां से नहीं डालेगा, एक बाल तो डालना ही पड़ेगा. देयर आई एम गोइंग टू हिट द 4, देयर आई एम गोइंग टू हिट द 6. वो कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जाओगे तो आई एम श्योर कि आप फेलियर होगे ही नहीं. अगर मान लो अगर मिलता भी है तो यू आर नॉट गोइंग टू बी डिमोरलाइज्ड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द ओवरऑल समरी ऑफ माई इंटरेक्शन इज, सबसे पहले ऐसा है, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि देखो बच्चों, कि फेलियर्स तो हमारे पास आएंगे, जैसे मैंने बताया कि लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, अप एंड डाउन, फेलियर एंड सक्सेसेस रहेंगे. लेकिन आपको देखना है कि जो भी फेलियर आएंगे उसके लिए आप तैयार रहो, माइंडसेट कब रहो, और ये सब क्वालिटीज आपके पास रहे तो आप लेट मी टेल यू, नंबर ऑफ फेलियर्स आप अपने कम कर पाओगे. एंड आया भी तो आप डिमोरलाइज नहीं होंगे, एंड यू विल बी कंसीडरिंग दैट एज ए स्टेपिंग स्टोन, दैट विल बी योर वे फॉरवर्ड फॉर योर सक्सेस. अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे. विद दिस आई विश यू अगेन टू हैव अ वंडरफुल सक्सेस इन ऑल योर एंडेवर्स. आप जहां पर भी होंगे, जो क्लास में होंगे, वहां पर इस अप्रोच के साथ जाओगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे. मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं. ये पेंडेमिक निकल जाएगा, पेंडेमिक में आप घर में रहिए, बाहर अगर आते होंगे तो यू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ. आपके पेरेंट्स को आप केयर करिए. आपके अगर पेरेंट्स पर्टिकुलरली अब 50-60 है तो आप उसकी केयर करिए, क्योंकि सबसे पेरेंट
की केयर करना मतलब इतना अच्छा काम कोई कुछ नहीं होगा. आप उनकी केयर करिए, अपनी केयर करिए. I'm sure you are going to be successful. I once again thanks Dr. Rajput ji for giving me this platform to have interaction with the student. And moreover, I would like to thanks PRO as well for giving me this opportunity, inviting me, giving me this opportunity to have interaction. Now I will stop here, and let me see whether you can have some questions. If you are having any questions, I will be able to address those questions. Let me see whether you can have some questions in the chat box.